Good morning, dear students. My name is Sudhir Shukla. I used to teach subject electronic devices. Electronics devices. Inside this subject, we have covered the topics preview of quantum mechanics, about the classical physics, that what physics is basically, and the both topics which were asked to be a pillar of the quantum mechanics, Heisenberg uncertainty principle, along with it Schrodinger's wave equation. We come to know about the Heisenberg uncertainty principle, that what are the uncertainties which are involved with the quantum particles associated with the quantum mechanics. Today, we will cover the remaining portion which was left in our discussions, during which I have told you about the Schrodinger's wave equation. Schrodinger wave equation. As we have discussed in our previous videos, that this equation is the fundamental one in itself, that this equations can't be derived from anywhere. Along with this Schrodinger wave equation, Heisenberg uncertainty principle is also fundamental in itself, that both of the topics, whether it may be Schrodinger wave equation or Heisenberg uncertainty principle, these both topics were never be derived from any other phenomena or any other experiments or laws. These were the fundamental in itself. All other different laws, that laws or formula depend upon the classical physics or used in the classical physics or used in quantum mechanics, all of them can be derived from these equations or Heisenberg uncertainty principle. Meaning is कि ये दोनों इक्वेशन इंडिपेंडेंट है, ये किसी से ड्राइव नहीं होते हैं. तो इन आवर प्रीवियस वीडियोस आई हैव रिटन equation belonging to Schrodinger wave equation. While discussing that, we are taking particle and knowing that its wave characteristic. So what equation we have? We have equation psi in bracket x comma t is equals to a e power minus I upon h line in bracket et minus px. So in a few seconds or for few minutes I will discuss previous few of the facts, that how we have derived this equation or how we have this equation. See, in our discussions, when we consider quantum particles and associate based on the de Broglie search concept, what we did, we have associated quantum particles with the wave, because as de Broglie sir have told us that if the particle is moving, if the particle is assumed to be moving or in motion, various waves associated with that moving particle, and when we associate a particle with the wave, we have a waves equation. हमारे पास वेव इक्वेशन आई थी, और उस इक्वेशन में जो वेव के पैरामीटर्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, व्हाट वाज दोस टू पैरामीटर्स? One was amplitude with capital A and second was omega and K, because in the place of E we have written omega and in the place of P we have used K, wave vector. तो उसके बाद फिर हमने स्विच किया, हमने वेव वेक्टर से स्विच किया एनर्जी की तरफ, और जो आपका ओमेगा से स्विच किया एनर्जी की ओर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से स्विच किया एनर्जी की ओर, और वेव वेक्टर से स्विच किया मोमेंटम की ओर. तो मैंने ये आपको रीजन भी बताया था कि व्हाई वी आर स्विचिंग विद टू दोस पैरामीटर्स, क्योंकि जब हम बात करते हैं क्वांटम पार्टिकल का क्वांटम मैकेनिक्स में, उस दौरान जो ये आपके दो पैरामीटर्स आते हैं, एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम,
दीज पैरामीटर्स आर मेजरेबल, इजिली मेजरेबल, ये मेजरेबल है, ठीक है। और जब हम वेव लेते हैं तो उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसीज और वेव वेक्टर्स के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम एसोसिएट हो जाती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हमारे ड्यूरिंग जब हम उस इक्वेशन को लेके कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उस दौरान थोड़ी बहुत जो है वो एरर्स आते हैं, बट ये जो ऐसी क्वांटिटीज है एनर्जी और मोमेंटम, इनमें वो एरर भी जो है वो बहुत कम है, बहुत लेस है। मतलब हमारा जो रिजल्ट आता है या जो ऑब्जर्वेशंस हमें मिलते हैं वो प्रिसाइज्ड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन आई हुई थी। अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेट्स सपोज एज्यूम इट टू बी इक्वेशन नंबर 1। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो साई लिया था, मैंने बताया था कि ये वेव जो आपका पार्टिकल जिसको वेव से एसोसिएट कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम एक फंक्शन लेते हैं, और वो फंक्शन दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, एक x पे और एक t पे। तो जो आपका x पैरामीटर होता है व्हाट इट इज बेसिकली पोजीशन, ये पोजीशन बताता है उस पार्टिकल के कंसर्निंग। ये आपका t स्मॉल t ये टाइम बताता है, ये इंस्टेंट बताता है किसके करस्पॉन्डिंग, उसी पार्टिकल क्वांटम पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब साई जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, वो जो साई फंक्शन है किसका है, वो पोजीशन एज वेल एज टाइम का फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने इसको एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग equation 1 with respect to time. So while differentiating, what we have curly psi curly t is equals to a e power minus I upon h line et minus px in bracket we have minus of I upon h line into e. How we are having this equation? See, we are partially differentiating. Okay students, we are partially differentiating this equation with respect to time. So while differentiating this equation, this is a constant parameter, वो बाहर आ गया, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम डिफरेंशिएशन हमें करना है 6 इंटू ई पावर लेट सपोज 5x, तो वहां पे जो 6 है तो वो 6 कांस्टेंट है, तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, वो ए कांस्टेंट बाहर आ गया। फिर जब हम इस पैरामीटर को, ये वाला जो पैरामीटर है आपका, इस पैरामीटर को जब मैं डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें पता है ई पावर लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं कि ई पावर 6x है। 6x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो वहां पे ई पावर 6x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6 इंटू ई पावर 6x, ठीक है। मतलब उस फंक्शन का 6 गुना टाइम्स, या आपने 5x ले लिया, तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे e पावर 5x को तो क्या होगा, पहले हम e पावर 5x का डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट वी हैव e पावर 5x, उसके बाद हम जो x जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर वहां 5t है और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर लेट सपोज e पावर 5t है तो पहले जो 5 होगा वो बाहर आ जाएगा, e पावर 5t का पहले क्या डिफरेंशिएशन होगा, e पावर 5t, और अगेन हम जो वेरिएबल 5t t के साथ जो कोफिशिएंट है उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 5 हमारे उस फंक्शन के साथ होगा। मतलब कि e पावर 5t को अगर आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उस फंक्शन का e पावर 5t जो है उस फंक्शन का 5 गुना वो आपका रिजल्ट आएगा। तो सिमिलरली उसी तरह हम इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा ये फंक्शन एज इट इज आता है। उसके बाद इसमें हम देखते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, हमें पता है एक पोजीशन है और एक टाइम है, एक x है और एक t है, तो यहाँ पे जब हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये x विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स व्हाट इज रिजल्ट 0, तो वहां पे ये टर्म 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा et। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे जो t है ये पैरामीटर जो है हमारा वो हमारा फिर बाद में इसके साथ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमें डिफरेंशिएशन के दौरान इक्वेशन मिला, करली
साइन अपॉन करली टी का। नाउ व्हाट वी हैव, सी यहां पे जो ये फंक्शन है, ये जो आपकी वैल्यू है, व्हाट इट इज बेसिकली साइन। देखिए अगर आप इस ब्रैकेट को छोड़िए तो यहाँ साइज इक्वल्स टू क्या है, ए ई पावर माइनस आयोटा अपॉन एच लाइन ई टी माइनस पी एक्स। तो क्या इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके मैं साई यहाँ वैल्यू लिख सकता हूँ? यस स्टूडेंट्स, व्हेन वी हैव टू राइट हियर इट एज ए साइन इनटू प्रोडक्ट ऑफ दिस मच माइनस ऑफ आई एच लाइन इंटू ई, तो हमारे पास फिर से क्या आएगा इक्वेशन, वो आएगा हमारे पास माइनस ऑफ आई अपॉन एच लाइन ई इंटू साई डी साई अपॉन सॉरी करली साई अपॉन करली टी। नाउ वी आर अरेंजिंग, कुछ नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, इसको इधर और इसको इधर ले जाते हैं, ये जो पैरामीटर लिखा हुआ है आपका। तो जब इसको हम रिप्लेस करते हैं यहां से, तो ये h हमारा इधर डायरेक्शन में चल जाता है, मतलब h, और यहां आ जाता है i माइनस करली साइन अपॉन करली टी इज इक्वल्स टू ई साइन। मैं क्यों ऐसा सेटिंग कर रहा हूं, मैं आने वाले स्टेप्स में आपको बताऊंगा कि मुझे एक्चुअली चाहिए होगी वैल्यू ई साइन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से मैं कुछ पैरामीटर्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम जब इस इक्वेशन को देखते हैं तो यहां कहीं ना कहीं हमको डिनोमिनेटर में आयोटा दिखता है, आई। और स्टूडेंट्स हम ऑलवेज ट्राई करते हैं कि कभी भी अगर इमेजिनरी पार्ट जो आई आता है डिनोमिनेटर में, वो आई जो है वो हमारे साथ डिनोमिनेटर में ना रहे, वो इक्वेशन में न्यूमरेटर पे रहे। तो अगर मुझे इस आई को न्यूमरेटर में रखना होगा तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ इन न्यूमरेटर एज वेल इन डिनोमिनेटर विद दैट ऑफ आई। इस आयोटा के साथ मुझे ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो व्हाइल मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी हैव माइनस एच लाइन इंटू आई अपॉन आई इंटू आई करली साइन अपॉन करली टी इज इक्वल्स टू ई साइन। सी स्टूडेंट्स, यहां पे जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यू हैव माइनस आयोटा एच लाइन, और नीचे जब करेंगे आप इस डिनोमिनेटर में तो यू हैव आई स्क्वायर, एंड आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। यस स्टूडेंट्स, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, और -1 जब इस माइनस के साथ आ जाएगा तो वैल्यू विल बी प्लस। तो प्लस की वैल्यू जो आपके साथ आएगी इट विल बी ई साइन इज इक्वल्स टू आई एच लाइन करली साइन अपॉन करली टी। स्टूडेंट्स दिस विल बी द, वी आर पुटिंग इट एज ए इक्वेशन नंबर 2। एनी डाउट? सी यहां पे हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन किया और हमारे पास कुछ ई साई की वैल्यू ये आ गई। मैंने बताया आपको कि आगे मैं आपको बताऊंगा व्हाई वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ई साइन। क्यों नहीं हम इधर इस एच लाइन की वैल्यू थी तो हम उसको इधर ही रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं वी आर गोइंग टू यूज ई साइन, द वैल्यू ऑफ ई साइन इन आवर इक्वेशन, और इसी वजह से मैं पहले से जो है वो अलर्ट होके इनकी वैल्यूज निकाल के एक अलग इक्वेशन मैंने बना ली। ठीक है स्टूडेंट्स, सी नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन 1। Again, I am going to differentiate equation 1 twice with respect to x, with respect to position। मैंने equation 1 जो था उसको अभी इस स्टेप में मैंने डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने किया था with respect to time, लेकिन अब हम जा रहे हैं डिफरेंशिएट करना, पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करना इसका इक्वेशन 1 का विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। यहां हमने टाइम के रिस्पेक्ट में किया था, अब हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करने, और वो भी एक बार नहीं, ट्वाइस। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to position, that means x, twice, दो बार हम करते हैं इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन।
सो जब हम दो बार उसको करते हैं तो पहले हम लिखते हैं करली साइन अपॉन करली एक्स, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको। x इज इक्वल्स टू ए एम्पलीट्यूड e पावर माइनस ऑफ i अपॉन h लाइन et माइनस पी एक्स इंटू आई पी बाई एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम डिफरेंशिएशन का वही तरीका जो हमने तरीका इंप्लीमेंट किया था, सेम वही तरीका हम यहां भी इंप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहां पे आपने देखा था कि माइनस आया था, क्यों? क्योंकि हमने हमारे लिए जो x था उस दौरान जब हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा था तो x वाज कांस्टेंट, उसकी वजह से ये वैल्यूज क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। अब देखिए यहां पे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स जो हमारा t होगा, टाइम होगा, दैट विल बी ट्रीटेड कांस्टेंट फॉर अस। ठीक है, यहां पे वेरिएबल क्या होगा आपका, मोमेंटम होगा, क्योंकि वो पोजीशन के साथ है, x के साथ है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन, पहले तो हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट है पहले बाहर आ गया, इस फंक्शन का करेंगे तो वही सेम फंक्शन हमें मिलेगा। ठीक है, अब फिर दोबारा हम इस पैरामीटर को, इसके e पावर जो पार्ट है, e के जो पावर पे, एक्सपोनेंशियल के जो पावर पे है, उसको फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें जब इसको हम करेंगे et को तो वहां हमारी वैल्यू आएगी 0, और जब इसको करेंगे तो वी हैव माइनस ऑफ p। तो जब माइनस ऑफ p इस पैरामीटर के साथ आएगा तो माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, आई आयोटा मोमेंटम अपॉन एक्स, आई पी अपॉन सॉरी एच लाइन। हमारे पास क्या बचेगा, आई पी अपॉन एच लाइन। सी वी हैव टू डिफरेंशिएट इट ट्वाइस, हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना है। एक बार हमने डिफरेंशिएशन कर दिया और हमें पता है कि अगर उसी फंक्शन को हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो देयर विल बी ओनली चेंज विद दिस पैरामीटर, इसी का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, नथिंग एल्स, और सारे फंक्शन एज इट इज रहेंगे। ठीक है, आप करके बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अब हम इसको दोबारा जब हम करते हैं डिफरेंशिएशन इसका, वी हैव करली स्क्वायर साइन अपॉन करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम्पलीट्यूड e पावर ऑफ माइनस आई अपॉन एच लाइन et माइनस पी एक्स इंटू आई स्क्वायर पी स्क्वायर बाई एच लाइन का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इसी इक्वेशन को, जो ऊपर का इक्वेशन, उसको हमसे अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो वी हैव, जब इसको हम डिफरेंशिएट करें, करली स्क्वायर साइन अपॉन करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन एज इट इज अगेन वो रिपीट होगा और इसका हमने बस क्या कर देना है, एक बार और स्क्वायर कर देना है। तो हमने स्क्वायर किया, आई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एच लाइन स्क्वायर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां जो ये पैरामीटर यूज हो रहा है, व्हाट इट इज अगेन साइन। इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम कंपेयर करेंगे, व्हाइल कंपेयरिंग वी हैव दिस एज ए साइन, तो हमारे पास साइन आ गया। ठीक है, अब देखिए जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी -1। ठीक है, तो यहां ब्रैकेट में आएगा माइनस ऑफ पी स्क्वायर अपॉन एच लाइन का स्क्वायर। ठीक है, ये स्टूडेंट्स क्या है, करली स्क्वायर साई अपॉन करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साई ऑफ माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच लाइन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम फिर जिस प्रकार से मैंने इधर सेटिंग की थी, सिमिलरली अगेन वी आर डूइंग दिस सेटिंग एंड वी हैव rearranging the parameters. We have a new type of equation and that is somehow looks like h square minus of curly square sine upon curly x square is equals to p sine. See, let me check here. Yes, absolutely right. See, we have a new equation with p of psi is equals to minus h line square curly sine upon curly x square. We have a new equation. Okay,
I am considering this as a equation number 3 for us in this topic. See, we have a new type of equation, equation 1, equation 2, where I am denoting as a equation for E sign, and equation number 3, where I am doing for P psi. I am writing this here for P psi. Now, we are taking assumption, that is particle, we are taking this assumption, we are doing this assumption that particle is moving with a speed which is much lesser than the speed of light. I am not going to compare my particle with the speed of light. I am taking it as a speed which is much smaller than the speed of light. Got it? So while taking this assumption, we have a new type of equation which I will write here. See, हमें पता लग गया हमारे पास तीन तरीके के ऐसे इक्वेशंस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम देखेंगे कि ड्यूरिंग आवर दिस एग्जेप्शन व्हाट हैपेंस, कि जो हमने एग्जेप्शन लिया है, जो पोस्टुलेट मैं क्रिएट करता हूं फॉर दिस इक्वेशंस, तो उससे हमें क्या हेल्प मिलती है या हमारे पास क्या कुछ नया आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 I am taking assumption, so I am writing here let us assume that the speed of the particle is much smaller than speed of light. If particles speed is much smaller than speed of light, you can say the condition is non-relativistic. Okay, non-relativistic की कंडीशन क्या होती है, जहां पे आप ये कह दें या एज्यूम कर लें कि जो पार्टिकल्स की स्पीड है, जिस स्पीड से पार्टिकल मोशन कर रहा है, चाहे वो 1 डायमेंशन मोशन हो चाहे 3 डायमेंशनल मोशन हो, जिस भी डायमेंशन में हो, लेकिन अगर उसकी स्पीड कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है, तो वो कंडीशन आपकी, वो सिचुएशन, उस एजप्शंस में जो सिचुएशन होती है वो कहलाती है नॉन रिलेटिविस्टिक। सो द total energy of the particle can be expressed as, dear students, I am taking the assumption that particle's speed is less than that of, much less than that of speed of the light, and now I am taking condition that what is the total energy of that particle whose speed is much less than the speed of light. So the total energy of the particle, if I am taking it as a capital E, what it will be? It will be capital E. What is capital E? Capital E, what I have written here is the total energy. Okay, total energy will be the kinetic energy plus potential energy. What it will be? Kinetic energy plus potential energy. See, I am writing here kinetic energy to be P square upon 2m and potential energy as a capital V. In a few seconds, I will tell you that how I have written this kinetic energy in terms of momentum and mass as a P square upon 2m. See, we know that kinetic energy is equals to 1 upon 2 mv square. All we know that
कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग दैट इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर. सी द ब्यूटी ऑफ इट. 1/2 v into mv. We can write it. Okay. What is mass into velocity? It will be p. क्या होता है mass into velocity? Momentum होता है. तो I can write here while replacing this mass product of mass and velocity as a p. So we have 1/2 p into v. Okay, students. Now I am multiplying this term or this equation by m in numerator as well as in denominator. So what we have, अगर मैं करूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में m का मल्टीप्लीकेशन, अगेन दिस विल बिकम p into mass into velocity upon 2m. Got it? Again I can write in the place of mv as a p. So what we have, students, p square, this p with product of this p, we have p square upon 2m, and that I have written here, students, p square upon 2m. I hope you come to understand that in the place of kinetic energy, in the place of half mv square, how I am writing p square upon 2m. It's our need, that's why I am written. ये मुझे शौक नहीं है कि मैं जो है mv स्क्वायर की जगह, मेरा मन नहीं कर रहा है mv स्क्वायर का, तो मैं जो है वो मोमेंटम के टर्म्स में लिखूंगा. ये हमारी इस सिचुएशन के लिए आवश्यकता है, दैट इज इन नीड. सो आई एम राइटिंग इन द प्लेस ऑफ हाफ mv स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 2m. सो इन द प्लेस ऑफ potential energy I am using capital V, okay, which is denoting a potential energy, and E is the total energy. See students, now I am multiplying with wave function psi both sides, in the left hand side as well as in the right hand sides. So I am multiplying here with the function of psi. I am just writing it in a new line, otherwise you will get confused. While multiplying with wave function psi on both sides, so we have a new equation which I can write as E sine is equals to p square sine upon 2m प्लस v साइन. ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहां पे क्या किया बेसिकली कि मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया साई का बोथ ऑफ द साइड्स. तो जब मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं फिर उस दौरान मुझे कहीं ना कहीं इक्वेशन, जो मैंने इक्वेशन सेकंड और थर्ड लिख रखा था, उससे आप कंपेयर करो तो कहीं ना कहीं आपको ई साई और पी साई की वैल्यू आपको नजर आएगी. ठीक है स्टूडेंट्स. सो आई एम जस्ट राइटिंग दोज वैल्यूज हियर इन दिस इक्वेशन. ओके, आपको आई थिंक कहीं डाउट नहीं होगा किसी चीज को. ठीक. ओके स्टूडेंट्स, सी आई थिंक यू हैवंट मेंशन्ड वन थिंग व्हाट आई हैव रिटन. By mistake, I haven't mentioned here p square psi. This was the value p square psi because there we have a term p square. वहां पे हमने जब दोबारा दो बार, क्योंकि यहाँ जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे उस दौरान मैंने इक्वेशन नंबर 1 को दो बार ट्वाइस मैंने डिफरेंशिएट किया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर का टर्म्स छूट गया था हमसे. अब देखिए, अब आप जब इस इक्वेशन को आप देखोगे, you can easily compare p square psi. You have an equation third p square psi. आपको यहाँ पे ये वैल्यू दिख रही होगी p square psi, और जब आप e psi देखोगे तो आपको यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ भी e psi की वैल्यू मैंने निकाल रखी है. बस अब कुछ नहीं करना, अब हमने e psi की वैल्यू और p square psi की वैल्यू we have to substitute this in our this equation, और हमें कुछ अब एक फाइनल इक्वेशन मिलने वाला है. तो जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, while substituting these values p square psi and e psi in our this equation, we have a equation like
I H line curly psi upon curly t is equals to minus of H line square upon 2m curly square psi upon curly x square plus v sin। आई होप कि अब आपने जो इक्वेशन पुट किया होगा एंड यू आर ऑल्सो हैविंग द सेम टाइप ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन आया डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन जो आपका है दिस इज नथिंग बट द स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन। ये आपका क्या है? स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। और ये इक्वेशन बेसिकली वन डायमेंशन के लिए है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वन डायमेंशन के लिए, साथ में नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक मैंने मतलब आपको बता दिया था कि जब पार्टिकल्स की स्पीड मच स्मॉलर है किससे? स्पीड ऑफ लाइट के। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया एंड दिस वन इज द स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन। सी स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हुआ या स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन हुआ, ये अपने आप में फंडामेंटल इक्वेशंस हैं और ये किसी से डिराइव नहीं होते हैं, इनका बेस लेके हम डिराइव करते हैं। और लेट्स सपोज इस इक्वेशन को हम आप अगर यूज करना चाहें अपने पे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट यू कांट यूज इट डायरेक्टली। लेट्स सपोज अगर मैं मूव कर रहा हूं, अगर मैं इस साइड से इस कॉर्नर पे मूव करता हूं और ड्यूरिंग माई मोशन आई वांट टू नो कि आफ्टर दिस मच सेकेंड्स व्हाट विल बी माई पोजीशन, अगर मुझे पता करना हो क्या होगा तो मैं डायरेक्टली इसको यूज नहीं करूंगा, इससे मैं ड्राइव करूंगा, क्योंकि ये इक्वेशन किसमें यूज कर रहा है? क्वांटम मैकेनिक्स में यूज कर रहा है फॉर क्वांटम पार्टिकल। तो इस इक्वेशन से हम ड्राइव करेंगे न्यूटन्स लॉ। हम इस इक्वेशन से क्या ड्राइव करेंगे? न्यूटन्स लॉ। और आफ्टर ड्राइविंग दिस न्यूटन्स लॉ वी कैन यूज इन आवर केस कि जब मैं इधर मूव कर रहा हूं तो इतनी सेकंड बाद मेरी पोजीशन क्या होगी, या मैं बैक साइड मूव कर रहा हूं तो मेरी पोजीशन क्या होगी। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो ये इक्वेशन जो आता है दिस इज फॉर वन डायमेंशन। अब हम इसका जनरलाइज्ड इक्वेशन यूज करते हैं। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया कि इससे हम ड्राइव करेंगे न्यूटन्स लॉ, और न्यूटन्स लॉ से हम नहीं ड्राइव कर सकते स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन, क्योंकि मैंने बताया आपको कि वाइस वर्सा नहीं होगा। स्क्रॉडिंगर से आप न्यूटन्स लॉ ड्राइव कर सकते हैं, जो भी उनके फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉस थे, जो भी लॉ ऑफ मोशंस थे वो हम ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन उन लॉ ऑफ मोशन से वापस बैक आप स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन को ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आपके फंडामेंटल इक्वेशंस है दे कांट बी ड्राइव फ्रॉम एनी अदर लॉज और फिनोमिना। ठीक है, देखिए ये मैंने वन डायमेंशन के लिए बताया था फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। सी नाउ वी आर जनरलाइजिंग, आई एम जस्ट जनरलाइजिंग द अबव इक्वेशन इन द थ्री डायमेंशनल मोशन, मीन्स generalizing above equation in three dimension we have डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है वो स्मॉल करूंगा जिससे स्पेस में वो आ जाए। करली साई अपॉन करली टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एच लाइन स्क्वायर अपॉन 2m करली स्क्वायर साई अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई अपॉन करली जेड स्क्वायर प्लस v इन ब्रैकेट x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी इंटू साइन। डियर स्टूडेंट्स, जो ये हमारे पास इक्वेशन आया है, जो ये इक्वेशन है ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन का, while that relativistic particle is moving in 3 dimension। हमारे पास एक जनरलाइज्ड इक्वेशन आ गया। फिर और थोड़ा सा अगर मैं कंपैक्ट फॉर्म करता हूं तो आई हैव अ इक्वेशन
I H line curly psi upon curly t is equals to minus of H line square upon 2m. I am using here a new operator. I am just using here a new operator. This one is the compact form. Students, this one is the compact form of Schrodinger's wave equation. देखिए, मैंने जो ये इक्वेशन लिखा है, ये स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन है। ये नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए है, जब पार्टिकल वन डायमेंशन में मोशन करता है। मैं जनरलाइज्ड फॉर्म लिखता हूं इसी इक्वेशन का जब नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, दैट नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इज मूविंग इन 3 डायमेंशनल। मोशन उसका किस प्रकार से है? 3 डायमेंशन में है। तो हमारे पास कुछ इक्वेशन ये आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैं इसी जो इक्वेशन है इसका कंपैक्ट फॉर्म, थोड़ा सा कंपैक्ट फॉर्म में लिखता हूं 3 डायमेंशनल मोशन के लिए। तो इसको मैं रिप्लेस करता हूं इस सिंबल से। एंड आई होप यू ऑल नो अबाउट दिस सिंबल। दिस इज नथिंग बट द जो मैथमेटिक्स में हम जनरली यूज करते हैं, लैप्लेसियन ऑपरेटर। यस स्टूडेंट्स, ये आपका जो डेल स्क्वायर है ये आपका लैप्लेसियन ऑपरेटर है। मैं इसके जगह रिप्लेस करके लिख सकता हूं ये डेल स्क्वायर साइन, डेल स्क्वायर साइन, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस वी साइन। इसको कंपैक्ट कर देता हूं। तो जो ये मैंने इक्वेशंस, जो हमने इस दौरान जो इक्वेशंस देखे वो आपके थे स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, हमने जो ये इक्वेशंस हमें जो मिली, चाहे वो 1 डायमेंशन में मिली चाहे वो 3 डायमेंशन में मिली, इन इक्वेशंस को हमने कहीं से ड्राइव नहीं किया। हमने सिंपली मैथमेटिक्स यूज किया, सिंपल मैथमेटिक्स यूज किया, थोड़े बहुत फिजिक्स के लॉज यूज किए और थोड़े से एजप्शंस लिए, कंडीशंस ली, और उससे हमें कुछ इस प्रकार से एक नया इक्वेशन मिला। और इसी इक्वेशन को हमने नाम दिया स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन। और इसी को हम कहते हैं कि ये इक्वेशंस इस प्रकार से होते हैं कि इनसे हम क्लासिकल फिजिक्स या एलिमेंट्री फिजिक्स के जो लॉज हैं उनको ड्राइव करते हैं। लेकिन इन इक्वेशंस का हम कहीं से डेरिवेशन नहीं करते हैं। फ्यू ऑफ द राइटर्स जो हैं वो बुक में मेंशन करते हैं, टॉपिक जो मैंने लिखा हुआ था स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन, वो लिखते हैं कि डेरिवेशन ऑफ स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन। एंड आई नो दैट एंड यू ऑल्सो हैव टू नो दैट कि कभी भी ऐसा अगर टॉपिक आता है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि जस्ट ड्राइव द स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन, तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ठीक है। हम कभी भी डेरिवेशन जैसा शब्द या ड्राइव जैसा शब्द स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन को नहीं यूज करते स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन के लिए, या आपके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के लिए हम कभी नहीं यूज करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स, आपको जो मैंने बताया ये आपको समझ लग गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क टू मी, एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्क्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन। एंड थैंक यू फॉर टुडे, and I hope you will take care of yourself. Okay students, thank you so much.